So good morning students. Today we are going to start chapter number 4, not start. Actually we have to complete the part 4 of your chapter, the rat trap. So here we are going to start. We have completed part 3rd. So here you can see, but although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. Here groom means ready, perfectly ready, puckered, wrinkle, dissimulate, pretend, splendor, luxury, thunder, make a loud noise. It was talking about the December night, as I told you. The explanation of this stanza is, the Iron Master seemed very angry to see his well-groomed guest, as now he could make out his appearance well and realize that he was not his comrade. अब उसने जब उसको एकदम रेड ट्रैप सेलर को एकदम जब पार्टी में लेकर गए, वो इवनिंग के लिए बोला था क्रिसमस ईव के लिए, तो उसको जब रेडी होके उसकी डॉटर और ओल्ड मैन जब सामने लेकर आए और जैसे ही वो वेल ग्रूम होके सामने आया, एकदम रेडी होके सामने आया, तो सब लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं, उसके अपीयरेंस को, बहुत अच्छी अपीयरेंस लग रही है उसकी, जब वो रिप्रेजेंट हुआ वहाँ आके वेरी वेल ड्रेस में, तो सबको रियलाइज़ हो गया कि वो कॉमरेड नहीं था, वो सेलर नहीं था जो इधर उधर घूम रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको देखते हुए कि वो ऐसा लगता वेरी वेल ड्रेसअप है, मतलब रिच मैन है, मर्चेंट है, कोई कौन सा आदमी है. ही अंडरस्टूड दैट ही मिस्टूक सम स्ट्रेंजर एज हिज ओल्ड फ्रेंड. उसको ये लगा कि उसने ओल्ड फ्रेंड को मिस्टेकनली अंडरस्टूड कर लिया कि हाँ मेरा फ्रेंड है, लेकिन ये शायद गलती तो नहीं है मेरी. He screamed at him and asked him to explain. उस पर चिल्लाया, येल हुआ, उस पर बहुत तेज चिल्लाया और उसने पूछा what is this? क्या है, एक्सप्लेन करो इसको. The paddler knew that the Iron Master could make out that he was not his old friend. पैडलर जानता था आयरन मास्टर को कि ये उसका ओल्ड फ्रेंड नहीं है, वो बनाकर लाए थे उसको, बट पैडलर नोज दैट कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड तो है नहीं. As he already knew this, he was ready for the consequences. तो वो उसके लिए सारे रिजल्ट के लिए, कंक्लूजन के लिए, क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब कुछ है, उस सब के लिए वो रेडी था कि क्या रिजल्ट होने वाला है इसका, क्योंकि वो आके चिल्लाएगा मैं तो उसका फ्रेंड बन के आया हूँ और पता चलेगा कि आई वॉज नॉट दैट ओल्ड फ्रेंड, तो वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए मैं रेडी हूँ. एंड ही फेल्ट दैट द लग्जरियस ट्रीटमेंट वॉज अबाउट टू एंड. और उसने देख लिया कि जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया एकदम लग्जरियसली, तो अब इसका एंड होने वाला है. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. Well, said the Iron Master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. Here, hesitating means to be reluctant. Sheriff, Chief Executive Officer of Crown, जो इंग्लैंड में क्राउन पहनाते हैं ना, चीफ CEO जो कहते हैं आपके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज CEO ऑफ इंग्लैंड. The peddler tried to explain that he should not be blamed. Peddler try कर रहा था एक्सप्लेन करने का कि मेरी गलती नहीं है, it was not my mistake, वो मुझे रेडी करके लेकर आए थे. So he said that he was just begging for a stay in the forge. वो ये भी कह रहा था कि वो सिर्फ उसको क्या कर रहा है, begging है उसके लिए कि वो बस यहाँ पे भीख मांग रहा है कि मुझे बस यहाँ पे स्टे करने दो, मुझे यहाँ पे रुकने दो पार्टी में. ही ऑल्सो सैड दैट ही हैड नॉट हार्म एनीवन. उसने ये भी बोला क्योंकि कोई स्ट्रेंजर हमारे पास आ जाता है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं उसको कि हमारे को नुकसान पहुँचाएगा, जाने क्यों आया है, क्या मतलब है, क्या स्वार्थ है इसका. इसलिए वो क्या कह रहे थे कि उसको यहाँ से निकालो मत, एक बार के लिए उसको भी ये पार्टी एंजॉय करने दो. अब जब रेडी हो ही गया है तो, एंड वॉज रेडी टू वियर हिज रैग्स अगेन.
To this, the iron master hesitated and said that the peddler had not been quite honest. और इसी वजह से आयरन मास्टर जो थोड़ा सा हेजिटेट करने लगा, थोड़ा सा नर्वस भी हो गया, झिझक हुई उसको, थोड़ी सी नर्वस हुआ वो बहुत ज़्यादा, एंड कहने लगा पैडलर को कि हैड नॉट बीन क्वाइट ऑनेस्ट, ये भी कोई इतना सीधा साधा नहीं है जो चुपचाप से ऑनेस्ट है, मतलब बेईमानी सबके पास कुछ ना कुछ होती है, सब ऑनेस्ट नहीं होते, लॉयल बहुत कम होते हैं। एंड सो ही वांटेड टू कॉल द शेरिफ, और इसी वजह से उसने क्या करा, वहाँ के CEO शेरिफ को बुला लिया। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. He said, this whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Master, Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. Here, fist means a person's hand band, जो बैंड हो जाता है ना उसका हाथ, उस तरीके से बोल रहा है। Rat trap seller gets so enraged upon hearing about the sheriff that he struck the table very hard with his fist. उसने क्या करा, अपने जो यहाँ पे जो ये जॉइंट है ना, उससे उसने क्या करी, उसकी टेबल सरका दी, और बहुत ज़्यादा हार्ड रूड बिहेव उसके साथ किया, और बहुत हार्डली ये सब किया, उसने टेबल उसको अटका दी। He said that this world is a rat trap, और उसने ये भी कहा ये जो वर्ल्ड है ना पूरा का पूरा क्या है, कि वर्ल्ड ही रैट ट्रैप है। एंड ऑल द गुड थिंग्स आर बेट जस्ट लाइक द रिंड्स ऑफ चीज़, और सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें फिसलाती है, हमारे बातों में हमारे को फंसाती है और कुछ नहीं करती है। सब लोग आते हैं, हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, हमें उस चीज़ की तरह समझते हैं कि हम उस पर से स्लिप हो जाएंगे, हमारा काम बस बनाना चाहिए, उनको अपना काम बनना चाहिए। एंड द स्मॉल पीसेज ऑफ पॉक आर बेट फॉर द रैट विच आर ऑफर्ड टू ट्रैप इट, और एक स्मॉल पीस जैसे हम रैट ट्रैप में रैट को कैच करने के लिए, ट्रैप करने के लिए उस पिंजरे में जो चूहेदानी होती है उसमें हम लगा देते हैं ना छोटा सा पीस ऑफ फूड या मील, कुछ भी कह लो, या पॉक कह लो, तो वो हम लगा देते हैं ताकि वो ट्रैप हो जाए, उसमें कैच हो जाए। उसी तरीके से ये पूरी दुनिया भी हमें क्या करके रखती है, हमारे जाल में फंसा के रखती है, हमें कोई ना कोई लालच देती रहती है, चीज़ का लालच हमें लटका देती है, सो वी विल गो एंड कैच, और वो हमें ट्रैप कर लेती है वहाँ पे। Not only this, he also pointed out to the iron master that he may today be imprisoned by the sheriff. और यही नहीं बल्कि वो पॉइंट आउट भी करते हैं उस आयरन मास्टर को कि वो आज हमें क्या कर रहा है, जेल में कैद कर रहा है, इम्प्रिजन कर रहा है हमें उस चीज़ के लिए, बाय द शेरिफ, जो उसका इंग्लैंड का क्या है, CEO है, उसके थ्रू। बट वन डे द आयरन मास्टर विल ऑल्सो गेट ट्रैप लाइक दिस, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आयरन मास्टर खुद ही इसमें ट्रैप में फंस जाएगा और वो भी हमारी तरह कैच हो जाएगा। The iron master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. आयरन मास्टर डिडंट लाइक द पेडलर्स वर्ड्स, अब इतने वर्ड्स इतना कह दिया पेडलर ने, आयरन मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ही डिड नॉट लाइक इट एंड डिसाइडेड नॉट टू कॉल द शेरिफ, और उसने डिसाइड करा ठीक है उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मत निकलवाओ। ही आस्क्ड दैट पेडलर टू लीव एट वंस, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ, मुझसे पूछ लिया ना, मैं जा रहा हूँ, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो भी आके मुझे धक्के मार के निकालेगा, ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, तो उससे पहले मैं खुद ही निकल जाता हूँ। बट just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning, she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rat. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Rat means miserable person, interceded, intervene. Here, the iron master's
डॉटर स्टॉप द पैडल। अब वो जाने लगा तो आयरन मास्टर की डॉटर ने, जैसे उसने गेट ओपन किया, आयरन मास्टर की डॉटर ने क्या करा, पैडलर को स्टॉप किया, रोकना चाहा। शी वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर फैलो, वो क्या करना चाहती थी, जो उसका पुअर फैलो था, जो उसका दोस्त हो गया था एक तरह से, फैलो था, साथ में थे वो लोग, मेट्स थे, तो उसकी हेल्प करना चाहती थी। स्टार्टिंग से दिख रहा था उसकी डॉटर उसकी हेल्प करना चाहती थी। Since morning she was planning how she could make the paddlers day happy, और वो सुबह से ही सोच रही थी कैसे पैडलर को मैं खुश रखूँ, कैसे उसको मैं एंटरटेन करूँ ताकि उसका मन लग जाए, उसको कोई गलत ना समझे, कुछ गलत ना कहे। ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस देयरफॉर शी वेंट अगेंस्ट हर फादर्स विल, अपनी फादर की मर्जी के अगेंस्ट वो गई, उनकी मर्जी के खिलाफ गई। एंड स्टॉप हिम टू क्लोज बाय क्लोजिंग द डोर, जैसे वो गेट ओपन करने लगा उसने क्लोज करने को मना कर दिया कि भाई ठीक है तुम इसको क्लोज मत, अब तुम यहीं रह जाओ, बस उसको ओपन ही मत करो, बात खत्म कर दो, यहाँ पर बात खत्म हो गई और तुम कहीं नहीं जा रहे। उसकी डॉटर को पसंद नहीं आया, किसकी डॉटर को, ओल्ड मैन की डॉटर को। I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us. Here, just one in the whole year, the iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. Here means she tried to explain the difficulties faced by the paddler. जो भी पैडलर्स के थ्रू उनको डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि बड़े बड़े लोग आए थे पार्टी में, तो पैडलर को कुछ भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी नोन नहीं था उसके लिए। उसको सिर्फ एक बॉडी उसकी थी, बाकी प्रेजेंस उसकी थी, बाकी उसको ड्रेसअप भी उन लोगों ने किया था, तो उसको कुछ भी नहीं पता था क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या तौर तरीके होते हैं बड़े लोगों के। ही डिड नॉट नो अबाउट लाइक दिस। तो पैडलर के थ्रू जो भी डिफिकल्टी हुई वो उसको एक्सप्लेन करने लगी, एक्सक्यूज देने लगी उनके लिए। She said that he didn't have any house. उसने कहा, एक्सप्लेन किया कि उसके पास कोई घर नहीं है, तो हम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। He was turned out from wherever he went and he always kept on running in order to safeguard himself from being arrested. वो सिर्फ अरेस्ट होने के बचने के लिए, अरेस्टिंग से बचने के लिए मेरे पास हमारे घर पे आया था। उसके पास कोई घर नहीं है, तो why didn't we help him? क्यों नहीं कर सकते, इतना तो हम हेल्प कर सकते हैं उसके लिए। उसने एक्सप्लेन किया। She said that she wanted him to enjoy Christmas with peace. उसने ये भी कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है क्रिसमस विद क्वाइटनेस, विद पीसफुली, as they had promised him, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस भी किया था एक दूसरे को। They should not send away a man on Christmas, वो उसको बाहर नहीं भेज सकती on Christmas. The man whom they had promised happiness on the day, और ये उनका प्रॉमिस जो निभाना होता है उनको, they have to fulfill their promise। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था क्रिसमस ईव पे कोई भी बाहर नहीं जाएगा और कोई भी सैड नहीं होगा, तो उसको हैप्पी रखने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। द आयरन मास्टर वॉज नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर टू गो अगेंस्ट हिज डॉटर, और आयरन मास्टर के पास, जो ओल्ड मैन था, उसके पास कोई आंसर ही नहीं था कि वो अपनी बेटी के अगेंस्ट जाए, अपनी डॉटर के अगेंस्ट जाके उसको जाने दे, पैडलर को भेज दे। उसके पास कोई आंसर नहीं था ऐसा, तो वो कोई जवाब दे नहीं पाया उसको। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have the regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. Here, preach means advice, parson means churchman, explanation. The only thing he could say to his daughter was that she was trying good at convincing others. वो सिर्फ अपनी बेटी को क्या कहने लगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ कन्विंस कर रही हो बाकी लोगों को, जो पार्टी में लोग थे उनको। बेटर देन द प्रीस्ट टू द चर्च, और इतना अच्छे से कर रही हो कि वो जो प्रीस्ट होता है ना चर्च में जो चर्चमैन होता है, वहाँ का जो पुजारी होता है, पंडित होता है चर्च का,
तो उसको प्रीस्ट कहते हैं। अब वो जो उस चर्च मैन से, उस प्रीस्ट से भी ज़्यादा बेटर तुमने कन्विंस किया हम लोगों को, बट ही ऑल्सो वॉन्ट हर दैट होपफुली हर डिसीजन वुड नॉट ब्रिंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन दैम। और उसने ये भी कहा कि हम कन्विंस तो हो रहे हैं लेकिन हम वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर तो ये तुम लोग इस लायक नहीं हुए, तो इतनी पोटेंशियल नहीं हुई, हमारी इवनिंग नहीं बिगाड़ी, तो या इसका एडवर्स इफेक्ट, इसका वॉइस वर्सा इफेक्ट नहीं हुआ, तो तुम खुश रखने की कोशिश कर रही हो सबको, क्या इस वजह से अगर कोई दुखी हुआ तो वो ये भी कह रहे हैं अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया तो। द गर्ल टुक द पैडलर टू द टेबल एंड ऑफर्ड हिम फूड। अब वो क्या करी, गर्ल ने पैडलर को लेकर गई और टेबल पे उसने फूड को ऑफर किया उसको। She saw that her father had consented to her wish, और उसने ये भी कह दिया ठीक है, उस पेडलर को कह दिया तुम टेंशन मत लो, पापा मान गए, पापा ने कंसेंट दे दिए, हाँ कर दिया तुम्हारे यहाँ रहने की, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। The man with the red cap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? The peddler didn't say any word. अब बस वो जो डॉक्टर कह रही थी यहाँ बैठो फूड ले लो, पापा ने कुछ नहीं कहा है, तुम्हें कंसेंट मिल गई है, whatever is it, कन्विंस करने की कोशिश करती, पेडलर से nothing. He did not say even a single word and started eating, और चुपचाप से खाना खाने लग गया क्योंकि उसको सिर्फ क्या चाहिए था, क्लोथ, फूड और शेल्टर। क्लोथ उसको मिल चुके थे पार्टी में आने के लिए, फूड उसको दे रहा था, वो दिखाया तो बस उसको खाने की भूख लग गई, शेल्टर उसको जाने से रोक ही लिया था तो उसको मिल गया था, उसको और चौथी चीज़ कुछ नहीं चाहिए थी। ही डिड नॉट वांट एनीथिंग। तो दो ही वॉज डाउटफुल अबाउट हर इंटेंशंस, और उसके इंटेंशंस के लिए वो डाउटफुल हो गई, एंड वॉज वॉन्डरिंग वाई शी स्टॉप हिम, और उसके दिमाग में बस ये चलता रहा कि इसने मुझे स्टॉप क्यों किया। एक जब गर्ल और बॉय बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की इंटेंशंस, उनकी बॉन्डिंग उनको अंडरस्टैंड करनी होती है और रियलाइज अपने आप हो जाती है कि आप लोग ग्रुप में बैठे होते हो, सब लोग एक दूसरे से देखते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन पर्सनली अगर कोई कमेंट कर रहा है, कोई टॉन्टिंग कर रहा है, तो वी अंडरस्टैंड कि ही और शी वांट्स टू से टू मी समथिंग, ठीक है। वो कमेंट, वो टॉन्टिंग, वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट वेदर इट इज कमेंटिंग। तो हम ये चीज़ समझ जाते हैं ग्रुप में भी, तो वैसे ही उसको थोड़े से उसकी इंटेंशंस डाउटफुल लगी कि मेरा फेवर इतना ज़्यादा क्यों ले रही है, इसको क्या प्रॉब्लम है जो अपने फादर के भी अगेंस्ट चले गई और कंसेंट ले आई उनसे कुछ भी बोल के। तो ऐसा उसको थोड़ा इंटेंशंस लगी, लेकिन वो अपने फोकस कर रहा था फूड में, लेकिन उसका दिमाग घूम रहा था, वॉन्डर कर रहा था, वाई शी फेवर्ड मी। आफ्टर दैट Christmas Eve at Ramshaw passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshaw. Explanation: The peddler want to sleep. अब वो sleep करने चला गया, उसको नींद आ रही थी, अब हो गई पार्टी, फूड लेने के बाद वो चला गया। तो he did not cause harm to anyone. अब उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी कोई किसी बात के लिए हर्ट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो सोफे पे जाकर गेस्ट हाउस में बैठ गया, सोफे में जाके। He was once woken up in the afternoon. एक बार के लिए वो आफ्टरनून में उठा था, बट आफ्टर हैविंग हिज लंच ही अगेन वेंट टू स्लीप, और लंच लेने के बाद वो फिर से सो गया, क्योंकि इससे ही पता चलता है उसको कोई भी ग्रीडीनेस नहीं थी, कोई लालच नहीं था किसी तरह का, कोई लस्ट नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, अपनी नींद चाहिए थी, एक घर चाहिए था ताकि वो सुकून की नींद सो सके, ठीक है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो वहाँ से चोरी करके लाया था, जब वो क्रॉनर्स उठा के लाया था तो उसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं पुलिस से बच जाऊँ। अब पुलिस से तो उसने लड़की ने बचा लिया, अब इसको खतरा उस लड़की से था कि वो मेरा फेवर क्यों कर रही है, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो सब कुछ साइड में रख के अपनी नींद पूरे कर रहा था, खाना पूरा कर रहा था, बात खत्म। इट वॉज लाइक एज इफ ही हैड नेवर गॉट द चांस टू स्लीप, और वो इस तरीके से सो रहा था कि दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा सोने का, तो क्यों ना अभी सो लूँ, सो पीसफुली एज ही हैड गॉट टू दिस प्लेस, और इसीलिए वो वापस से अपनी जाके प्लेस पे सो गया कि दोबारा सोने को नहीं मिलेगा। कई बार ये चीज़ हमारे साथ भी होती है जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। In the evening when the Christmas tree was lighted,
They woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down in the dining room and eat the Christmas fish and porridge. Explanation. In the evening, the family woke him up as they had to light up the Christmas tree. अब Christmas tree पे क्या होता है, हमें क्या पता Christmas Eve पे क्या होता है, सारी चीज़ें तो हमें नहीं पता ना, उनके रिलीजियस, उनके स्पिरिट्स क्या होते हैं, उनके क्या कस्टम्स होते हैं. तो क्रिसमस ट्री के लिए उनको लाइटन करना था, तो उसने फैमिली ने जाके उसको जगाया, भाई अब उठो, उठने का टाइम हो गया है, सो लिए. He stood there blinking as if he was getting hurt. अब वो ऐसे ब्लिंक करके उठ रहा है, आंखों को ऐसे झपका के उठ रहा है, जैसे उसको डिस्टर्ब कर दिया किसी ने. सुबह से सो रहा है लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो गया और हर्टिंग हो गया बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द कैंडल्स की लाइट देख के, उसकी रोशनी देख के, ब्राइटनिंग देख के उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, डिस्टर्ब नहीं, हर्ट ही हो गया, उसको दुख हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत ठेस पहुँच गई, उसको चोट लग गई. ही अगेन वेंट टू स्लीप. वो फिर से जाने लगा सोने के लिए. फाइनली दे कॉल्ड हिम अगेन फॉर द डिनर ऑफ क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. अब फाइनली उन्होंने उसको क्या करा, कॉल किया कि आओ यहाँ पे खाना बना लो, फिश है और पॉरेज है, जो आओ खाओ. मील होता है अपना पॉरेज, इट्स अ काइंड ऑफ फूड रिलेटेड विद ओट्स. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was his father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. क्या कह रहा है ये? आफ्टर द डिनर वॉज ओवर, जैसे डिनर ओवर हुआ, पैडलर ने हर एक को थैंक यू कहा उनकी प्रेजेंस के लिए, वहाँ आने के लिए, अटेंड करने के लिए. द आयरन मास्टर्स डॉटर सैड दैट द क्लोथ्स विच वर गिवन टू हिम वर अ क्रिसमस प्रेजेंट. आयरन मास्टर की डॉटर ने क्या कहा, जो क्लोथ्स उसको दिए गए थे क्रिसमस के लिए, वो उसका प्रेजेंट था, वो उसका क्या था, गिफ्ट था, जो उसको रिटर्न नहीं करना. और ये किसके साइड से था, फ्रॉम हर फादर, उसके फादर के साइड से था. So he could carry with them, वो उसके कैरी करके ले जाए खुद के साथ में. She even invited the peddler to be with her family for the next Christmas Eve. और उस डॉटर ने क्या करा, उसको नेक्स्ट क्रिसमस ईव पे अपनी फैमिली के साथ इनविटेशन भी दे दिया. एंड प्रॉमिस दैट नथिंग बैड वुड हैपन टू हिम. और ये भी प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईव पे आओगे, नेक्स्ट क्रिसमस पे आओगे, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा. आई प्रॉमिस्ड. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in the boundless amazement. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. Here, boundless means limitless, amazement, wonder, एक्सप्लेनेशन. द पैडलर डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर दिस. इसके लिए उसने कोई आंसर नहीं दिया. ठीक है, कपड़े ले जाना, ले जाऊंगा, फैमिली के साथ आऊँगा, ठीक है, ओके, फैमिली है या नहीं, लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उसके एक्ट पे रिएक्ट नहीं करा. तो नेक्स्ट डे बोथ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वैंट फॉर द क्रिसमस सर्विस अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट डे दोनों की दोनों, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर, क्या है, क्रिसमस सर्विस के लिए जो उनको मिलती है, प्रोवाइड होती है, उसके लिए वो गए वहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग में. दे डिड डिस्टर्ब देयर गेस्ट एज ही वॉज अस्लीप. और उसने अपने गेस्ट को, मतलब जो पैडलर था, रेड ट्रैप सेलर था, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा और वो लोग उसको छोड़ के चले गए. When at about 10 o'clock they drove back from the church. जैसे ही 10 o'clock के अराउंड टाइम हुआ मॉर्निंग का, तो वो वापस से चर्च से जब घर आए थे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. उसने अपना सिर रखा, वो बैठी वहाँ पे और अपना सिर जो है ऐसे लगा लटका दिया, जैसे गर्दन अपन लटका के बैठ जाते हैं उस तरीके से वो ऐसा पोजीशन पे वो बैठी. than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling traps.
चर्च में जाके उसने क्या लर्न किया, उसने ये लर्न किया कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो है आयरन वर्क की मिल में जो काम करता है वो रॉबरी करके भागा है, हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन, एक मैन के द्वारा हुआ है जो कि वहां पे क्या करता था, रैट ट्रैप सेल करता था. Yes, that was a fine fellow you let into the house. और वो ही फाइन फेलो, हाँ वो ही भला आदमी कहाँ है, इस घर में एंटर हुआ है. Said her father, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब उसके फादर ने ये चीज़ कही उसको, अब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये वॉन्डर करके हैरान हूँ, मुझे ये हैरानी हो रही है कितनी सिल्वर स्पून हमारे कबर्ड में बची है अब, क्योंकि वो देखा चोर है तो वो तो कहीं से भी चोरी करेगा, तो उसको दिमाग में ये चीज़ आ गई थी फादर के माइंड में. अब वो सिर लटका के क्यों बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी. उसके पापा को ये चीज़ पता चल गई थी, अभी तक उसके फादर को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि वो चोरी करके आया है, अरेस्ट होने से बचने के लिए आया है. तो अब डिजेक्टेड मीन्स हियर सैड. बोथ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर हैड कम टू नो दैट अ रेड ट्रिप सेलर हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्राफ्टर as I told you. They realized that he was the same man whom they had over as a guest. और ये वो उनको रियलाइज हो गया था चर्च में जाते कि वही आदमी है जिसने चोरी की है. The iron master said that it was his daughter who insisted to give shelter to a thief. अब आयरन मास्टर को ये पता चल गया कि इस थीफ, इस चोर की हेल्प कौन कर रहा था, मेरी बेटी. It was my daughter who helped him and was wondering that how many silver spoons had been stolen by him. और वो इस बात को देख के बहुत आश्चर्य भी थी, वॉन्डर भी थी, कितनी सिल्वर स्पून जो है अब हमारी चुराई गई है, मैं भी देखूं उसके थ्रू कितनी चोरी हो गई है. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. आयरन मास्टर ऑन रीचिंग होम इंक्वायर्ड अबाउट द पैडलर फ्रॉम द वैलेट. अब उसके वैलेट में से भी उसने पैसे देखे कितने हैं, क्या है, हमारे से यहाँ कुछ और, हमारी तो कोई चीज़ नहीं ले ली उसने, हमारा पैसा तो नहीं ले लिया. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ थीफ. और उसने ये भी बता दिया कि तुम भी थीफ हो ना, तो ये भी चोर है, ध्यान रखना, इसका ध्यान ही रखना बिल्कुल. To his surprise, the valet told him that the paddler, अपने जो वहाँ पे जो काम करने वाला था उस इंसान को भी उसने बताया कि जो पैडलर है ना यही चोर था. Instead of taking something, had left a small Christmas gift for Miss Williamson. अब उससे कुछ लेने की बजाय उसने क्या करा, एक गिफ्ट भी दे दिया क्रिसमस का उसको. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes, but that was not at all. In the rat trap lay also a letter written in large jack characters, honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give me the money back. To the old man on the roadside who was the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, written with friendship and high regard. Captain Von Stein. The meaning is this. The iron master's daughter opened the gift. आयरन मास्टर की डॉटर ने ओपन किया उस गिफ्ट को. इट वॉज सो रफली पैक्ड, वो बहुत रफली तरीके से पैक किया था, बस ऐसे ही कर दो, मिसमैनेज था, मैनेजफुली नहीं था. दैट शी कुड इजीली गैस व्हाट वाज इनसाइड द पैक. अब उसकी पोस्चर से, उसकी स्ट्रक्चर से पहचान गई थी किस तरीके से इसको पैक किया, तो इसके अंदर क्या है. अपार्ट फ्रॉम द रेड ट्रैप एंड 3 कॉर्नर नोट्स, मतलब रेड ट्रैप और 3 कॉर्नर नोट्स को भी छोड़कर क्या था उसमें, देयर वॉज अ लेटर. The paddler had thanked his host who had taken care of him as he was a real captain.
सच्चाई अब पता चलती है। पैडलर ने उसको थैंक यू कहा कि तुमने बात बात पे मेरा फेवर किया, बात बात पे मेरा साथ दिया, चोरी करने के बाद, एक चोर कहलाने के बाद भी क्या हूँ मैं, एक रियल कैप्टन हूँ। इन रिटर्न ये गिफ्ट में मैं तुम्हें एक रेड ट्रैप देना चाहता हूँ एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी, और स्टोलन मनी भी तुम्हें रिक्वेस्ट करके दे रहा हूँ सो दैट तुम ओल्ड मैन को वहाँ तक पहुँचा दो। ही सैड दैट इट वॉज शी हु लेट हिम फ्री फ्रॉम द रेड ट्रैप। उसने ये भी कहा कि तुम ही हो जो मुझे रेड ट्रैप से जो रेस किया गया है ना इस स्टेटस में, इस दुनिया वालों ने मेरे थ्रू, तो उसके लिए क्या कर रहा है वो उसको बचा रहा है। फ्रॉम दैट ऑफ अ मियर पैडलर टू दैट ऑफ अ कैप्टन, कैप्टन होने के बाद भी मैंने तुम्हें रियलाइज नहीं कराया कि मैं कैप्टन हूँ। एट लास्ट ही अंडरसाइन एज कैप्टन मोन्सटेल, और ये सब बताते हुए उसने अपने अंडरसाइन, अपने सिग्नेचर किए उसमें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।